Okay guys, so this is 3rd July Friday and we are going to be recapping the price action of Tuesday 30th June. We have already recapped Monday, that would be posted as well. So Tuesday, off of the daily chart, starting from a good asset ES, currently more so I can view this as kind of manipulation below here, done. But if it wants, it can turn it into bearish framework off of previous day. That will lead into this being considered as lack of willingness to return back inside the relevant swing. So previous DI serves as a level of relevance here. If previous DI fails to offer a move lower, then completely manipulation below here, trading back inside, high quality longs. Simply that was my bias, done. Now NQ dependent on ES. ES has hit this, see, ES has hit this, NQ has not. So again, if I want to long NQ, that would be on the framework of ES. If ES goes lower, I can frame NQ directly lower. If ES does not go lower, either stays at the same plus or go higher, I can frame NQ till here, way past here as well, and ES as an individual asset as well. यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा. ES as a asset A, obviously, done. So NQ is B, which has the framework based off of ES here, coming towards these two curves. A leg formed here. Price is not reversing, instead rejecting previous lows, the previous relevant low, which is previous low here, and then directly all the way here. If you are not able to find clean lows, just spot an easily visible low, which would obviously be this, and then see if your previous day low, previous day high has enough separation away from it. If you remember the relevant swings topic, कि previous day, previous low, recent ranges level as a way of relevance when these are away from here, right? इतना clear है ना? Previous day low, previous day high can act as a relevant points if these are away from the actual clean relevant swings. Done. This is the easily visible relevant swing. So do not confuse yourself with all these. This is just noise. You should be viewing it this way. All this shouldn't be visible to you. You should be viewing it this way. High to low here, then going all the way higher, then this previous day here, right? Previous day low, and this. So only the recent ranges level off of the previous day range should be visible. Rest all this should be noise down until the actual relevant swing. So this is something you can use because it is of the recent range. This all here is just noise, all here just noise. Done. I wouldn't use this. Yes, I wouldn't use just this or this, and then the recent ranges as always. Done. So this is more so bullish for me. Obviously, recent ranges, price not reversing off of here, this framework holding, not reversing off of here, instead rejecting lows, again bullish. So no shorts, only longs. And there is one asset which I can think of shorts, but I wouldn't prefer shorting, right? Ideally the framework is YM hit the relevant swing, right? Then lack of willingness to return back, done it. Then again opposing run, again starting to go higher. So this bullish as well, right? Over here, but it has kind of framework. If you see, if you see here,
to go lower. Obviously I wouldn't prefer framing it lower, rather I would prefer ES or NQ whatever है ना clean. RTY में तो बिल्कुल फ्रेमवर्क ही नहीं शॉर्ट्स का, इसमें फ्रेमवर्क है, बट आई स्टिल वुड प्रेफर लॉन्ग्स ओवर शॉर्ट्स. बट शॉर्ट्स आर टेक्निकली वैलिड स्टिल, है ना. सो द लास्ट लाइन ऑफ शॉर्ट्स, I want to prefer long, but are shorts valid? It's just that I don't want to frame shorts, right? More so long. Lack of willingness to return below the high. Holding through this, then again moving away from here, right? Moving away from here, this swing holding. See, lack of willingness to return back, immediately goes away. Then continuation away from here. So now again the recent level, and that recent level, if display is through, it cancel out this idea as well if you view it this way. कि यहाँ से यहाँ देखो अगर आप, right, this previous day high, if gets displaced higher, मैं हार भी चलाऊंगा, then the bearish 100% gets failed. That is something you want, because you want RTY YM both to be bullish. Can YM go bearish? Yes. Do I want to frame bearish? I can, but rather ES or NQ as a better asset. This is more so forced bearish, so I would rather prefer longing than shorting, unless it reaches there by itself, then I can think of shorting whatever. This is like, see, wants to go long, just retracing, and you're thinking this as a reversal and trying to trade away, and it goes this. Do not try to pick the highs, let it go through, and where it should go higher, then see if it still fails. Actually displacing away from there, not picking the highs, right? How the framework is, price is moving away from lows, away from lows, away from lows, and displacing through highs, through highs, through highs, and not the cleanest, right? Shorts are technically valid, but more so discretion to favor longs over shorts here. Getting my point? Had this day, the next day, directly gone lower, then yeah, I would have 100% tried to short this day. Ki actual quality shorts, actually wanting to go lower. It's simply not the case here. Understood. Or simply previous day gets displaced through your short framework till here gets displaced, and you can easily long till here. Got it? So only one main level of relevance going into the next day, which is this, refined from here, idea derived from here. Clear, done, no doubts, off of the daily chart. RTY, no way I want to frame it bearish. If it goes, it goes. The next day I am talking about. Done. Okay, going into the lower time frame. Yes, if reverses from away from these highs, then I can short ES, I can short NQ. If ES does not reverse, I can long ES, I can long NQ towards here as a lagging asset towards here. That is simply my idea, right? That was my idea. That is not, that was. RTY bullish, just that YM should not come back lower from previous day high. Only conflicting idea here. Previous day high gets displaced through YM RTY one sided long, right? Let me mark previous day at least, and this as well. ओए कहाँ है तू? ओके, गेटिंग इनटू द डे. इंडिकेटर हटा दो ना अभी के लिए.
better picture, right? So NQ is asset B, so rather just focusing on ES for NQ only. This is 6 p.m. AM और सेम टाइम पे okay, so this is 7 AM which took out previous day high, right? And kind of rejecting back away from it. That isn't the case you would have wanted to happen if you want to long RTY or whatever this. Still the idea hasn't been invalidated. In QS Megala, this is X. I cannot tell myself if price is reversing from here or not reversing, because it is still hanging at the same price point, neither going away from it, neither going towards it. Now kind of going away from it. This is 9 AM, right? Here it is 8:45. This is 9:15. If I go lower, if price wants to go lower, I have the day established. I want to see price reaching low of the day, and displaced through this. My bullish idea would be invalidated, because if it wanted to go bullish, this was the last line of defense. It would have came immediately, started to go higher. Only then I would have considered bullish idea. If this gets displaced to, all bullish ideas would have been invalidated. I can directly short ES, I can directly short NQ as well. If I show it to you on the M15 or hourly chart. NQ, not the asset A, right? The framework depends on here. If price comes, which is here, starts to go higher, starts to go higher. And this is frameable. Like price hit this, open low and displacing away, I can consider this. But if this fails to support a move higher, then I have a established high of the day which I can use to trade here, and the last line of defense which would have made it go higher also failed. So yeah, that is price reversing from here, and also at the same time it would be back inside from here, so no chances of it going bullish from here. Getting my point? I already have a high which I can use to frame it lower, but the narrative for going bearish, narrative means one-sided framework. One-sided framework has not been formed, narrative has not been established. It can go bullish, it can go bearish, I do not know. If bullish, I would want it to reach here, if not low of the day, and keep displacing through here. If it displaces through here, then I can assume it does not want to revisit these and not going lower off of it, so you are not reversing, so I can now. Getting my point? Best shots would have been below this low of the day, or yes. So NQ not paying attention until ES does something which I can call a framework of reversing from previous day or not reversing from previous day. And at the same time NQ itself reached the same point, so reach or not, whatever. I do not know still about ES. I have no idea if it is reversing 75% or done. not. 75% done. I saw few people take that. This here. Am I right?
Okay, I didn't pay this much attention, but we can have a look at it if it was valid, or if it was valid how we can make it valid, or if it was not valid at all. पहले देखता हूँ कि ESN की वजह किसी और का कुछ भी फ्रेमवर्क है तो वहीं पे इनवैलिडेट होता है कि नहीं. दिस इज़ 9:44. 3 मिनट में देखो अगर तो कितना है. दिस इज़ 9:42 वट एवर. This is 9:40. What 40 what? इसको 9:42 तक लेके जाते हैं. 9:40 एक और कैंडल. 9:42 right? Okay, now let's have a look. Why I am rejected previous day? So not something I would have wanted to frame it higher. Instead making a framework to go away from here, so not good. And now still if it wanted to go bullish, and I wanted it to form a low at low of the day and invalidate the high which can make it go lower, right? And how would that get invalidated? By not getting any continuation lower by that, and instead this does not exist for me, right? Assume this was never here, only this high and this low. We are essentially trading away from this, not this. ठीक है, तो इस सेंस में assume this was never here, just this or this. This framework can still stay valid if price comes like here and starts going lower, right? So either whatever over here something like, or too much back deep inside here and then something here. Do not think I am wanting a true breakout over here. This could form here as well, right? And that would invalidate this idea because it shouldn't have came back this much, and if then it should have directly gone lower. This would invalidate the short bias for this. So at the time of that YM ES entry, this is not something you can consider valid to go long, still frameable to go short, right? Yes, you would want it to form it here, but now comes the discretion part from which you can extract out conviction with how much conviction you have, and you are willing to go this much aggressive over the line. You have to do it sometimes when you feel like doing it, and you don't have to be proper mechanically right. Sometimes you can tweak the model, but that tweaking should only come after you have a lot of experience, a lot. Okay, if you ask me, if I were to take it just solely off of ES framework, yes, kind of valid. Ki most probably ES is not displacing away from this eye and instead towards this eye. So bearish framework, if it were wanted कि यहाँ से जाना नहीं जा रहा most probably, right? It can still go from here, but हाँ तब तक हम पार्शियल ब्रेक इवन कर लेंगे. हमारे लिए ये हाई से अवे रिवर्स कर रहा नहीं कर रहा ऑफ ES फ्रेमवर्क, और NQ अभी तक पहुँचा नहीं है, राइट? सो जस्ट NQ ES की अप्रोच देखो तो आपको होना चाहिए द मोमेंट NQ हिट्स दिस, इफ यू आर टेकिंग दिस, द मोमेंट NQ हिट्स दिस आपका इमीडिएट ब्रेक इवन, क्योंकि तब NQ न्यूट्रल है, तब NQ अपना फ्रेमवर्क से भी ऐसे ले सकता है, राइट? द मोमेंट NQ हिट्स दिस, द मोमेंट आपकी ब्रेक इवन होना चाहिए, ठीक है? सोली ऑफ ये है. अब पहला पॉइंट हम इसको कंसीडर करते हैं वाइन के साथ, क्योंकि NQ और ES के रिगार्ड्स में जस्ट दिस है तो काइंड ऑफ वैलिड टू अ सर्टेन एक्सटेंट,
100% वैलिड नहीं, पर वो 100% वैलिड का हम ट्वीक कर सकते हैं. To your due diligence, discretion, you can to a certain extent when you have seen enough price movements, है ना. But I mostly prefer taking the proper validated moves, है ना. I mostly prefer कि not something like it can and it should, ठीक है. Over here or below here, completely one-sided moves I would get. So my choice was just rather to wait. Just based off of NQ, yes, the approach if you want to take to a kind of valid and immediately break even the moment NQ hits this high. And for me itself kind of okay, yes, NQ almost there, yes, break even you can do there. Why I'm not completely validated for longs, shorts can still form the immediate second. This is not something you can say bearish framework from here has invalidated. You wanted previous day to get displaced through, so at least you want reversal to fail. Leave about displacement, price is not even reaching for there, let it at least invalidate the reversal form there, then you can break even once it hits this. But the part is conviction, and that conviction you can use to get aggressive sometimes, aggressive, conservative, according to your own discretion. And that discretion should be built upon 1,000 scenarios, 10,000 scenarios, not 10 scenarios, 100 scenarios. That is not enough number. थोड़ा सा रिस्क पुश करके इफ़ यू कैन, तब भी अप्रोच यही होती कि वाई को इग्नोर करके इफ़ यू आर अज्यूमिंग आ ही जा, क्योंकि एन क्यू यू आर सेइंग कि यहाँ आना चाहिए, इट कैन स्टिल गो लोअर विदाउट इवन यहाँ आना चाहिए वाला नहीं है. ओके, बट यू शुड बी ओके टेकिंग दिस एज अ लॉस. मैंने इसको कंसिडर नहीं करा यहाँ यहाँ या यहाँ, या तो वाई अपना मेरे को बताए, क्योंकि वाई ही मेरे को बताएगा आर टी वाई मैंने लॉन्ग मारना है या शॉर्ट, क्योंकि वाई प्रीवियस डे से रिजेक्ट कर रहा है. दैट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क आई वुड यूज टू लॉन्ग टिल प्रीवियस डे. वाई ने प्रीवियस डे ले लिया, आर टी वाई ने ले लिया, तो मेरे को आर टी वाई प्रीवियस डे हाई तक मार रहे हैं, तो मैं आर टी वाई लॉन्ग नहीं मार सकता अभी जब तक वाई मेरे को ना बोले कि ये प्रीवियस डे का रिवर्सल फेल हो रहा है. आई कैन हैव बेटर ऑप्शंस. Still, if you want to take immediate break even the moment NQ hits this is more so you are trying to take free trade, but not a free trade. You saw me taking some of those positions and you considered copying them, but this is not one of those. ठीक है, यहाँ देख के क्या मेरा आइडिया वो सही नहीं, मतलब क्या पता इमीडिएट भी फेल हो जाए, बट वॉज माई आइडिया नॉट वैलिड किया. यहाँ से आके ये NQ इसकी ऐसे रिट्रेसमेंट बना सकता है, वैलिड ना. फ्री ट्रेड यू मे हैव हर्ड फ्रॉम मी, बट यू शुड नॉट बी ट्राइंग इट एट ऑल नाउ. आई एम यूजिंग 100 of things from like months, years now, है ना, but I desperately don't teach all of them as it would rather do harm than good. Yes, I would teach most of the things, but only after you have mastered the previous ones, so the new ones don't mess up the previous learnings. So simply think in probabilities and how calm and how easily visual idea and clean one-sided idea where it will form, simply over here or below here. You have enough of a range still pending. ES की रेंज अगर कैलकुलेट करो, इसने कुछ एक्सपैंड कहीं भी नहीं करा, जस्ट मतलब ओपन यहाँ है, डेली ओपन, ठीक है, डेली ओपन छोड़ो, अगर लो से देखो कि बुलिश के लिए 30 पॉइंट्स टोटल एक्सपैंड कर रहा है, 112 पॉइंट की डेली रेंज है. खुद देखो, अच्छा दिन है तो इसके ऊपर आपको इतना पड़ा है, आधी भी नहीं हुई है, मतलब आधी तक भी करो तब भी आपको टूअर मिल जाएगा. और शॉर्ट्स के लिए 112 यहाँ तक है. वाई फोर्सिंग यार, वाई फोर्सिंग, खुद देख लो, नहीं है इनफ रेंज पेंडिंग कि इसके नीचे देखोगे तब भी इतना था. एंड क्योंकि मेरी पोजीशन थर्सडे को क्या थी, वही तो थी, जस्ट वेटिंग कि रेंज इनफ पड़ी है, तो मेरे आई डू नॉट हैव टू ट्राई टू पिक टू अर्ली. जब 100% वैलिड है कि और कुछ हो ही नहीं सकता है, तब ले लो ना, सिंपली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए. दूसरी बार 930 कुछ बनाए, यू डोंट नेसेसरली हैव टू टेक इट. येस, इट एंड्स अप वर्किंग, बट प्रोबेबिलिटी वाइज मैं बोल रहा हूँ ना, वॉज वाई एम नॉट वैलिड टू
था हेयर, देन यू वुड हैव कंसीडर्ड ओके वैम तो बना ही नहीं था यहाँ से लॉन्ग, ये वो है ना। मेरे लिए वैम अब बनेगा अगर इसके ऊपर डिस्प्लेस करे, तब इट इज़ नॉट going lower from here, then I can start considering longs towards previous day high on RTY and whatever जिनका individual framework है कि YM पे short नहीं बन रहा, NQ पे short इसके ऊपर बन सकता है, इसके ऊपर ES में भी बन सकता है. NQ hits this, your position should be break even. Yes, the same moment it would have got your TP, whatever, huh? But just because it got TP, I wouldn't say that is something I would treat as a worthy position. See the same moment, YM also hits this. Now आपको सेम जगह पे देखना है, खुद सोचो, लॉन्ग मारना है आपको इसके ऊपर, आपको क्या रिएक्शन चाहिए, डिस्प्लेस करके ऐसे, लॉन्ग मारना है इसके ऊपर, आपको क्या रिएक्शन चाहिए, डिस्प्लेस करके ऐसे. YM भी ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे आपको अगर लॉन्ग मारना है आपको ऐसे चाहिए. सेम टाइम तीनों ऐसे बना दे, तीनों ही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर बनाते हैं इंडिसेस. YM ने ये बना दिया, YM का बेरिश इनवैलिडेट हो गया और इनका बुलिश इसी के ऊपर पीक है. आपको ज़्यादा देखना ही नहीं है, देखना नहीं है उसके बाद. और सेम YM यहाँ बनाया RTY में, यही यूज़ करके आप अपना लॉन्ग RTY में आपको किसी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए. RTY में इंडिविजुअल आप इधर से अवे कर सकते हो, पर YM जब वैलिडेशन दे दे RTY में आई डू नॉट नीड टू ब्रेकआउट ओवर हेयर वट एवर, इसके पहले भी लॉन्ग मार सकता हूँ, इंडिविजुअल फ्रेमवर्क यहाँ से लॉन्ग मारने का. बट यहाँ तक मारने के लिए जिसने ले लिया प्रीवियस डे राइट, वो देखने कि एक्चुअली वो लॉन्ग जा रहा है. सो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम बिट कि RTY YM इसके ऊपर कर भी रहा है. नाउ आई कैन स्टार्ट कंसिडरिंग इट. NQ से मैं थोड़ा खुश नहीं था यहाँ पे. इमीडिएट वाला सेंस. सी हाउ, अब आपको एक ही चीज़ देखने सब पे. यहाँ तो अगर थोड़े तो सेम फॉलो करते हैं ना, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट कर जाए, ये भी यहाँ से रिजेक्ट कर जाए, तो यू कैन शॉर्ट दीज, यू कैन शॉर्ट दीज. और जिसने लॉन्ग अगर जा सकता है यहीं से जा सकता है, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा तो नहीं जा रहा, तीनों पे सेम. और ये सेम जगह पे अगर ऐसे बने तो आपको एक्स्ट्रा कुछ देखना है, तीनों पे देखना ही सेम है, यही देखना है तीनों को. सी हाउ सिंपल easy it becomes here. Simply wait for those spots. अब मेरे को याद नहीं है क्या पोजीशन ली थी, कैसे ली थी, एक दिन कौन सा दिन है, ट्यूसडे. YM ने कुछ वैलिडेट नहीं करा मेरे लिए, NQ ने कुछ नहीं करा, ES ने कुछ नहीं करा, मेरे लिए जस्ट हिट हुए हैं. तो इनको एक अपोजिंग लेग में बनाने दूंगा, जस्ट हिट हुए हैं, एक अपोजिंग लेग बनाओ, उसके बाद यहाँ से अवे जाओ तो ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे आओ तो भी ठीक है, बेटर बिट गुड. YM यहाँ से नहीं जा रहा है, NQ नॉट सो गुड, ES काइंड ऑफ गुड, YM गुड है. हम RTY देख सकते हैं. YM कब गुड है, ये कैंडल की इसके ऊपर से नहीं ही जा रहा, तो हाँ वी कैन टेक दिस. और ब्रेक इवन इमीडिएटली द मोमेंट YM hits this current high of the day. अच्छा ये पोजीशन मेरी मिस हो गई थी, शिट. इसको मैंने देखा था इस कैंडल में, YM ने जब ये बनाया, उसके बाद ये आया चोर ऐसे एग्जीक्यूट मेरे करते करते, ये वाली कैंडल भाग गई इधर. फिर आपका भाई बोल रहा है 1 पॉइंट आ जाओ, ले लेनी चाहिए थी, इधर ही ले लेनी चाहिए थी जहाँ की अगली कैंडल. ये कैंडल यहाँ कहीं भाग गई, फिर मैंने कहा नहीं लिमिट लगाऊंगा मैं इधर, इसी प्राइस पे चाहिए. ओ नहीं आई चोर. तो इसके बाद जस्ट एक पोजीशन हमारे हाथों से निकल गई. एंड सी हाउ चूजिंग द राइट एसेट अफेक्ट्स. सेम एंट्री का फ्रेमवर्क, ये वाली एंट्री का मैंने इस पे यूज़ करा, इस पे आपको कुछ प्लस में मिल गया और इस पे ठुक भी गया. हाँ
बस इसका फ्रेमवर्क यूज़ करना है, यानी कि इससे आवे नहीं जा रहा है, एंड इट एंड्स अप वर्किंग। कुछ 2 आवर यहीं पे मिल गया, ऑब्वियसली पार्शल एंड वटेवर। हाई ऑफ द डे या क्या भाई, मैं कोई गलत जगह तो नहीं मार कर है प्रीवियस डे यार, गलत जगह मार कर है, ये नहीं है प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है। और हाई ऑफ द डे के थोड़ा ऊपर हम पार्शल लेते 2 आवर हो जाता, यस गुड। प्रीवियस डे हाई इधर ही है, हाँ ठीक है। 2 आवर समवट partial obviously 70% would have been off, बाकी ब्रेक इवन बाबू। हाँ यहाँ पे ब्रेक इवन बाबू, जो कि you would have been boomed। या मैंने पोजीशन ये किसी को भेजी थी या मुंबई को भेजी थी, मेरे हिसाब से तो फुल टीपी हिट हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा फिर, और क्यों था? अभी तो मेरे को वैलिड ही लग रहा है प्रीवियस डे आए तक, पर उस टाइम फिर क्या मैं गलत तरीके से टीपी ले रहा था क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से उस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं था कि मतलब ऐसे लगा लो कि ऑब्जेक्टिव के थोड़ी ऊपर तक गई है कैंडल, ऐसे समझ रहे हो? नहीं यार, ब्रेक इवन के बिना ही ऐसे ठा, समझ रहे हो? जैसे ये कैंडल है ना, ऐसे ठा हुआ है, समझ रहे हो? मेरा टीपी यहाँ है तो उसके भी ऊपर थोड़ी गई है प्राइस। यहाँ तो मैंने टीपी मार्क कर किया था क्योंकि मेरे को अभी ये पूरा वैलिड लग रहा है कि RTY प्रीवियस डे हाई वाले लेवल से रिवर्स नहीं कर रहा है। इंस्टेड जो नहीं कर रहा तो प्रीवियस डे हाई तक इसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क यूज़ करके आई कैन फ्रेम दिस 10 AM continuation away from current low of the day, 10 AM open low, enough opposing candle, sweeping and opposing low। जो बेरिश जा सकता था वो नहीं जा रहा है। इसका बुलिश सिर्फ इससे अवेट देखना है मेरे को, कोई हाई हुई ब्रेक पे नहीं देखना, इसका है ही बुलिश। और यहाँ पे मेरे को प्रीवियस डे लॉजिकल लग रहा है, तो हाँ 2 आवर पे ब्रेक इवन यस। पर यार हेम भाई मैंने आपको भेजी तो नहीं थी ये, अभी तो मेरे को लॉजिकल लग रहा है 2 आवर के बाद ब्रेक इवन वटेवर। और बहुत लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ES पे ये लिया, ठीक है, बट आई वुड से RTY वाज अ बेटर एंट्री। मैं नहीं कह रहा हूँ ये अच्छी नहीं है, मेरे को RTY बेटर लगे। हाँ इस टाइम पे जो बेरी जा सकता नहीं जा रहा, इसका फ्रेमवर्क जहाँ से रिवर्स करना है नहीं कर रहा, डन। पर आई वांटेड इट टू फॉर्म अ बिट बेटर वे, थोड़ा अच्छा से बन जाता फिर, क्योंकि NQ अभी भी मैं खुश नहीं हूँ। NQ मैं अभी भी चाहता हूँ थोड़ा ऐसे कर जाए यार, क्योंकि मेरे लिए अभी भी ये ऐसा ही है कि इट वुड कम बैक फॉर्मिंग दिस वे, तो आई एम नॉट एट ऑल प्रॉपर्ली। हाँ एसेट सिलेक्शन ऑब्वियसली अगर मेरे को फोर्स ही करना होता है NQ में अभी लेना ही लेना है तो ES ऑब्वियसली, NQ तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हाँ RTY पे बाद में भी एक पोजीशन मैंने L ली थी, वो ली ही इसलिए थी क्योंकि पहली पोजीशन मिस हो गई है। गुस्सा लगा था ना इस पे, इतनी फॉर्ड पोजीशन जस्ट बिकॉज ओ भाई एक बेटर फील मिल जाए ऐसे। मियाओ दिल में थोड़ा चुभी थी, इतना दिन वेट करके भी हम भाई ऐसे देख रहा है, एक छोटे से फिल के पीछे 1.5 आवर भी ले लेता क्या चल जाता तेरा। तो ये आई एम नॉट सेइंग इनवैलिड है, बट ओके, मेरे को NQ वगैरह वटेवर अच्छी नहीं थी, वैलिड है, चलो बोल लो यार। मेरे हिसाब से अगर ये है 19, टोटल 20 है, तो RTY 20 है, इसको मैं कम नहीं रेट कर रहा हूँ, ये 19 आउट ऑफ 20 है, बट RTY 20 आउट ऑफ 20। गेटिंग माय पॉइंट?
इधर मेरे पास है चॉइस और चारों एसेट्स ही सेम है। अब लॉन्ग 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 सिर्फ जो शॉर्ट जा सकता है वह नहीं जा रहा और जिन्होंने जहाँ से जाना चाहिए वो नहीं जा रहे। की बात यह एन क्यू आई एम नॉट प्रॉपरली श्योर नाउ अबाउट दिस। एन क्यू भी अब एसेट भी रहा है नहीं, एन क्यू ने भी इट सेल्फ हैज़ टैग दिस। क्या इसने यहाँ पे टैग करा भी था? ये हाई है 63.5। जिसने वो पोजीशन लिया, अब मैं बोलूँगा इनवैलिड, क्योंकि एन क्यू ने यहाँ पे ले लिया था। अब तो वो M4 है ही इनवैलिड है, एन क्यू ने यहाँ पे ले लिया था। आई एज्यूम डी को लाई था, अब तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। ना 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 ना, नो वैलिड। ये यहाँ पे जिसने M3 लिया था अब तो बिल्कुल भी नहीं वैलिड। M3 M4 वर्क कर गई है, बात अलग है, यहाँ वैलिड नहीं है क्योंकि एन क्यू ने यहाँ पे ले लिया था। आई एज्यूम्ड ये इक्वल आई है, तो एन क्यू द मोमेंट इट्स दिस ब्रेक इवन नो। अब आपको वेट करना था प्रॉपर इसका रिएक्शन यहाँ पे बने या इसका यहाँ पे बने। डन सीन है। मैं आऊँ बहुत लोगों ने शायद ये भी लॉन्ग ट्राई करा था। M5 है, जा रहा था, मैंने बोला था कि इफ़ इट गोज़ इट गोज़। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इससे, मेरे को थोड़ा अच्छा चाहिए था। अच्छा इन द सेंस अब वो मैं नहीं समझा पा रहा। एन क्यू ही मेरे लेवल में होते हैं। एन क्यू मेरे को बार बार बोल रहा है ये लाएगा ही इसको नीचे, मेरे लिए एन क्यू है ही ऐसा। अभी तक इसको याद ही नहीं, इसने इसको हिट करा, अभी तो बस अपनी लैर में चल रहा है। तो अब एक अपोजिंग लेग बनाने आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। तो वो अपोजिंग लेग मेरे को बताएगी। RTY में मेरे को कुछ नीड नहीं थी, तो RTY पे जब मेरे को कोई मन में शंका ही नहीं है, मतलब इसको ले भी सकता हूँ और बैक इन साइड थोड़ी मन में मेरे को है डाउट, तो मैं क्यों इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो आई सिंपली लेट इट गो। ये भी और M1 भी, M1 स्टिल थोड़ी सी आई कैन से बेटर, ये M5 तो नहीं कि अगर मैं पहला ही यहीं से नहीं कंसिडर कर सकता उसके बाद वाली क्यों कंसिडर करूँगा। एंड यू कैन ऑल्सो काइंड ऑफ व्यू इट in more so straight line way, right? यानी भाई जी हे जो गाना था और उसके बाद इस दिन में क्या हुई, ये एंट्री वर्क कर गई थी शायद। आप लोग हैं वापस आ गए यार, आप लोगों ने तो टीपी डाला था भाई, आपने ली थी कितना गया है? ये तो नहीं गया 1 पॉइंट। आपने क्या इधर लिया था? हाँ फिर शायद लिया सकती है, थोड़ा बेटर फिल लिया हो। अच्छा बाद में गया था, तो वही है मेरे लिए, मेरा कंसर्न ही यही था कि अब जैसे खुद एक्चुअली इसको देखो, मेरे लिए कंसर्न मेरा ये है कि अभी तक इसने स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाया है, फिर एक अपोजिंग लेग बनानी चाहिए, फिर उसके अवे अगर जा रहे थे तो मैं एक्चुअली मेरे लिए फ्रेमवर्क पीक में वेरीफाई करूँ। ये वाले को मैं मोर सो ऐसे देख रहा हूँ, गलती से रास्ते में बन गया ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये वालों को मेरे लिए ऐसे ऐसे फिर बताया ऐसे या फिर ऐसे, समझ रहे हो? ये वाला फ्रेमवर्क RTY में मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप लोग कह रहे हैं बाद में प्ले आउट होगी, हाँ ठीक है, बट खुद देख रहे हो आप फिर किस तरीके से प्ले आउट हुई। क्वालिटी पोजीशंस इस तरीके से नहीं होती है भाई। आप लोगों की तो रूह काम के गई है कंपा के। 1.5 आवर ऐसे होता है कि शुरू होते टच हो जाए रास्ते में पार्शल। आपको रुला रही है 1.5 आवर के लिए, खुद ही देख लो फिर क्या ना। टीपी लेके गई है पर किस वे से, है ना। इस चीज़ की मैं थोड़ी बात कर रहा था। 1 लेग फिर ऐसे फिर काइंड ऑफ, पर इसके बाद आई डू थिंक मैंने कुछ ट्राई करा था। YM ब्रेक इवन इफ आई एम नॉट है, YM ब्रेक इवन है यार। मेरे को क्यों लग रहा है मैंने उस दिन जैसे RTY पे एक लॉस लिया, एक RTY मिस हुई। हाँ पोजीशन 2 ही ली थी मैंने। YM ब्रेक इवन, पर YM मैंने मारा क्यों और कहाँ है?
थोड़ा सा मेरे को कोई याद कराएगा। आई डू थिंक ये 1020 पर इस पे मेरे को RTY का फ्रेमवर्क देखना है और यहाँ किसी और का देखना है की ज़रूरत है। 1020 वुड मीन 1025। ओके, देखने में तो ये लोग लग रहे हैं बुलिश अभी, है ना? ठीक है, अभी तक बेरिश नहीं जा रहे। 1020 इधर है, हाँ देखने में बुलिश लगे कि इधर से बेरिश नहीं आना चाह रहे। ओके, अब 1020 पे RTY मेरा भाई जी कहाँ है? उसने हाई ऑफ द डे हिट कर दिया होगा। हाँ, RTY ने हाई ऑफ द डे हिट कर दिया होगा। ये है ना मुझे 1020 समवेयर हेयर, ये दिस इज 1020। हाँ यस, डिड हिट दिस। मैं M1 या M2 वटेवर पे देख रहा था, इफ़ आई डू रिमेम्बर इट, RTY को देखने के लिए। तो नॉट एबल टू रिवर्स फ्रॉम हेयर, क्योंकि मेरी ये मिस हो गई यहाँ पे जो भी RTY पे थी। फिर आई मूव टुवर्ड्स हेयर। आप बोलो मैं ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क तो ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर इसको एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करके यहाँ ले सकता। द सेम वे एंट्री जो यहाँ पे बनी उसको एज अ फ्रेमवर्क यूज़ करा, एज ए एंट्री नहीं। एंट्री एज अ लेता तो ये इसको ठोक जाता, पर फ्रेमवर्क यूज़ करके मेन में एंट्री ली जिसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क भी अच्छा है वो ले गया। अब इसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क, आप मेरे को बोलो क्या मैं ये लॉन्ग लूँगा? नहीं लूँगा। पर क्या ये एज अ फ्रेमवर्क यूज़ कर सकता हूँ कि ये यहाँ से नहीं जा रहा तो दूसरे एसेट ही यहाँ तक कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल फ्रेमवर्क भी अच्छा। आई कैन actually use this to trade away from here. I cannot use this to trade away from here. तो ये चीज़ the moment this hits previous day और whatever, या ये हाई ऑफ द डे पे जब पहुंच जाए तो थोड़ा ऊपर रखा होगा ऑब्वियसली। फिल का याद नहीं है मेरे को, हाई ऑफ द डे पे ब्रेक इवन, हाँ ब्रेक इवन कर दिया होगा चोरों ने। हक पोजीशन तो अच्छी थी ना, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। पर अभी नहीं समझो आप क्या मेरा स्टॉप लॉस लेके गया या TP दे गया था। इससे अच्छा ठीक हूँ मैं ब्रेक इवन बाद में भी दिया है पर ठीक हूँ अच्छे पोजिशन अभी आऊँ। ओके भाई, ऐसी पोजिशन में तो ही बंदा फ्री ट्रेड में ब्रेक इवन होता है जब नॉट दैट वर्दी हो जाना। पर मेरा वर्क वुड हैव बीन डन बाय ब्रेक इवन यहाँ पे होता ना, मैं RTY पे कि 2 आवर मिल ही जाता, RTY पे 70% बुक कर ही लेता मैं। इफ़ यू अज्यूम 1.5 आवर बुक हो गया होता मेरा, 2 आवर पे 70% और बाकी ब्रेक इवन, तो 1.5 आवर प्लस में एंड करके मैं बाय बाय कर देता। और यहाँ इसके बाद जब ये ब्रेक इवन होता तब तक मैं पोजीशन दूसरी एग्जीक्यूट नहीं करता ना। 10:55 के बाद मेरे पास कोई फ्रेमवर्क आता है क्या? 11 AM ये यहाँ से वापस जा रही है, हाइदर से रिवर्स नहीं कर रही है। इसने भी यहाँ पे हिट कर दिया, ये भी रिवर्स नहीं कर रहा है। अच्छा ये लिया था ना मैंने उसके बाद, तो ये भी यहाँ से रिवर्स नहीं कर रहा है इसकी तरफ। तो इसमें अगेन ये फ्रेमवर्क एज अ फ्री ट्रेड, द मोमेंट दिस हिट दिस YM का फ्रेमवर्क तो ब्रेक इवन, तो ये भी उसी सेंस में लिया मैंने। दिस टर्न्ड आउट टू बी SL एंड आई एम ओके, क्योंकि YM यहाँ जाए तो YM का फ्रेमवर्क, YM खुद ही नहीं गया था तो दिस इज बाउंड टू फेल। चोर की कंडीशन ये थी, दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट दिस, इमीडिएट ब्रेक इवन। खुद ही नहीं गया चोर तो वो तो फेल हो गए, जिसने लेके जाना है वही नहीं जा रहा। ठीक है, पर आप देख रहे हो अच्छा प्लस में देना होता है माइनस ब्रेक इवन। 0 आवर मिस हुआ है, 2 पोजीशन थी एक, और यहाँ पे ये लॉन्ग, इस पे 0 आवर, इस पे -1 आवर। मेन पोजीशन ली हो ना, उसके बाद बंदा दूसरी नहीं भी देखे 2 आवर लेके ब्रेक इवन, बंदा मैं 11 AM के बाद मैं ख़त्म ही कर देता दिन भाई। पोजीशन लेके इतना में ना ओके होता मैं भाई, इतना हाँ नहीं देखता। अब गंदे लोग मेन पोजीशन मिस कराए मेरी। अच्छा बोला कम से कम
2.5 आवर का डिफरेंस डाला। ये ऐसे में प्लस 1.5 आवर होता, वो भी गया, और अब -1 आवर था, तो मतलब -2.5 आवर इस दिन चुकाई चोर। वट एवर, समझ आया? कोई डाउट्स? यहाँ टी में था ही 1 साइडेड। बस जो चोर प्रीवियस डे पहुँच गया था उसको देखना वहाँ से जा रहा है नीचे या नहीं जा रहा है। डन सीन है, नो डाउट्स। अगर बोलो तो मैं अगला दिन भी अभी रिकैप कर सकता हूँ। आई डू थिंक हो जाएगा, और कल थर्सडे का रख लेंगे। कितना गया था यस वगैरह? क्या आप लोगों ने ये लिया होता? ये तो प्लस छोड़ो, था करके होता। हो M1 वाला बच जाता थोड़े से उससे। आज आके अगर M5 पे कोई पोजीशन है वो मेरी ही अच्छी है। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पे जाके ब्रेक इवन हुआ ना मैं। ऑब्जेक्टिव तक तो अच्छी एक्सपैंड हुई है ना, और SL तो स्टिल नहीं हुआ है, TPU है ना, पर स्टिल ऐसे प्राइस एक्शन में रहने से अच्छा मेरा मॉडल अगर मेरे को ब्रेक इवन पे निकाल रहा है तो मेरे को बचा रहा है कि क्वालिटी प्राइस एक्शन नहीं है। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सपोज टू बी फ्रेमिंग। मेरा मॉडल एक्सपेंशन फ्रेम करना चाहता है ना, दिस इज़ नॉट एक्सपेंशन। और इधर ब्रेक इवन जरूर इधर से सीधे ठा कर देते हैं, इसमें एटलीस्ट ठा तो नहीं करा, ऑब्जेक्टिव तक जाके ब्रेक इवन है। एसेट सिलेक्शन थोड़ी छोटी तो अच्छी है आपके भाई, है कभी कभी लग जाता तुक्का। ओहो अच्छा, नेक्स्ट डे मुश्किल वाला दिन है। तो क्या मेरे को अभी समझाना चाहिए आप लोगों को? दसो वीरो दसो। भाई जितने बंदे हैं सारे मेंटरशिप वाले इधर है ना। हेम भाई क्या चक्कर है, बड़े ठा ठा कर रहे हो आजकल है? इंग्लिश वाला वर्जन डाला, चलो स्टिल ठीक है। ओम भाई ने पढ़ा होता ओम भाई बैन ही मार देता, क्योंकि उसको पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। और उल्टा आज ही वो लड़के आए तो बोलिए बैन मार दा वो। रिदम भाई आपको समझ आया मैंने क्या बोला? मैंने नहीं बोला है, हेम भाई ने बोला है। हाँ जस भाई देख रहे हो कितने गंदे बच्चे हैं मेरे सर्वर में, है ना? जस भाई समझाओ इनको यार। हाँ बड़े हो आप यार, मार चला इधर। अच्छा एक चीज़ कर सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ करता हूँ ताकि किसी ने सिर्फ स्पेसिफिकली ये दिन का देखना हो तो इस दिन की डेट डाल के रख लो, है ना? अगली रिकॉर्डिंग ऑन स्पॉट ऑन कर दूँगा। डन है, डन। जल्दी बहुत जल्दी इसकी ऑफ करता हूँ, अगली ऑन स्पॉट अलग से ऑन करता हूँ। ठीक है।